going to start with a new chapter called Sole Proprietorship. Before that, can you understand English? Yes, ma'am. Okay. But I haven't received my books yet, ma'am. मेरे को Monday या Tuesday तक ही मिलेगा. कोई बात नहीं, no problem. I have PDF, so you can just note it down what you want to. First, tell me, you are a CBSE student or not? Yes, ma'am. CBSE student. Okay, which school? Where are you from? I'm from Tamil Nadu, CS Academy, E Road. CS Academy. Okay. So, are you a North Indian or South Indian? North Indian. Okay. So, basically, you are from Rajasthan. Okay. CBSE है ना आपका? सुभाष घई ऐसे कुछ कोई बुक है ना? मिले नहीं तो मेरे को कोई भी आइडिया नहीं है क्या है मैम. अच्छा, do you know anything about business studies yet? No, ma'am. It's Anything? to me. Yes, ma'am. It's you are hearing for the first time. No, I know that this is my subject, but okay, you are from commerce field or like what you have opted? I've opted for commerce with psychology. Commerce with psychology. Okay. See, Harshita, today I just give you a brief basics of what is business. I hope Ranjini is okay. If you ask Ranjini that if she is okay with the overall concept or revision of the class, Ranjini, बिल्कुल ठीक हूँ, revision हो जाएगा मेरा. She's very happy. She's very happy. So, Harshita, Ranjini, Harshita. If Harshita finalize the classes, she'll be your co-classmate. Okay, so you guys have to cope up with me. Okay, Harshita, have you any expectations with me? Are you having any expectations from me? Can you repeat, ma'am? Do you have any expectations that what you want from this subject? What do you want from me as a teacher? अभी तक तो कुछ नहीं. I just hope कि when I go to school after 2 months, it doesn't seem all new to me. I know something about what is going on. Oh, definitely. If you are regular with your study, definitely it's not a rocket science. Definitely, it's a subject related to human beings. Obviously, you see the things around you. It's not like NASA वाली कोई मैं पढ़ाई करवा रही हूँ तो तुम नहीं देख पाओगे. It's everything you can see around yourself. Harshita, let me ask you, are you comfortable with both the language, Hindi and English together, or you want me completely go in English? No, I'm comfortable. I cannot hear you. Somebody has a problem in their internet connection. Ranjini, can you hear me properly? मैम मुझे आपकी आवाज बहुत अच्छे से सुनाई दे रही है. बहुत ही बेहतरीन. रंजनी, आज की क्लास थोड़ा मुझे स्पेयर कर दो. आज थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं ना जो हमने पढ़ा. ठीक है, फिर रंजनी को मैं बैकअप के लिए अलग से क्लास दे दूंगी, फिर हम शुरू कर लेंगे. ऐसा कोई नहीं है कि एक दूसरे से कोई रिलेशन है. एवरी टॉपिक इज इंडिपेंडेंट. ठीक. ओके मैम. Harshita, let me ask you, are you comfortable in both the languages? Yes, ma'am. Okay, absolutely great. So let me introduce you guys with myself. My name is Vani, and I am from Delhi. Rest of my education qualification is like beyond your scope. So let me tell you, I have graduated in economics from Delhi University Lady Shri Ram College for Women, and I have currently completed my master's in economics from Banaras Hindu University in economics only. So I am quite qualified to teach you guys. So don't underestimate me as I am not capable enough. Okay. Yes. Okay. The important instructions of my class are you have to be on time or before time, and moreover, you should open your camera through the entire class. Okay. Yes, ma'am. मेरी और कोई policy नहीं है. And if you guys feel any doubt, you are always free to ask n number of doubts in my class. Okay. Yes, ma'am. Okay. So let me start with the word business studies. I know Ranjini has a quite good overview of this word or this term. So as I asked you, Harshita, आपको business studies के बारे में इस अनोखे word के बारे में कुछ पता है या नहीं? You said you are completely new to this word. So can I ask you, Ranjini, what is business to you? What do you understand by the business studies? The word business studies? busy रहना.
Okay, हमेशा busy रहना is the term business. Okay, being busy all the time is business. मैम इंग्लिश में बात करनी है हमको. नहीं, it's okay. In which language you're comfortable, you can. ठीक है. अच्छा, मैं हर्षिता से पूछती हूँ. Busyness, business, क्या busyness से related है? Can we somehow relate it with something? Yes, ma'am. Yes, you can. Obviously, they are quite synonyms to each other. Business and busyness. हाँ. है ना, बहुत ज्यादा एक दूसरे से रिलेटेड है. ठीक है. Being busy is somehow related with business. Are you guys aware about job? Yes, ma'am. Definitely are aware about job. Yes, Anjani, you are aware ना? जी मैम. अब तुम्हें लगेगा oh my god, I am so spectacular, मुझे ये सब आता है, मैं बोर हो रही हूँ. Don't worry, just recall it in your mind, okay? Everything, every class is different. मैंने जो तुम्हारी इंट्रोडक्शन क्लास ली होगी might be somehow different with this class. तो कभी भी कोई क्लास में ये नहीं सोचना कि oh my god, ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, I'll not listen to it. ठीक है? वैसे भी like revision a lot, revise it. जी मैम. और जॉब के बारे में कोई कुछ जानता है तो मुझे बता सकता है एक एक करके. Can you repeat, ma'am? आपकी आवाज मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे थे. I'm asking, do you know anything about job, occupation? हाँ मालूम है मैम. Employment? क्या मालूम है? कि it's where अपने most of the people पैशन के लिए थोड़े लोग मनी अर्न करने के लिए फॉर अ लिविंग यहाँ जाके एनरोल करते हैं मैम. यहाँ पे यू वर्क अंडर सम पीपल और पीपल वर्क अंडर यू. Very nice, yeah. Yes, obviously, in a job, you work under someone. This is a platform. This is your employer. Employer और employee के बीच में अभी मैं difference बता दूंगी. You work under a certain roof for someone else. तुम किसी और के लिए काम करते हो एक कंपनी में, ठीक है? लेकिन बिजनेस में तुम किसके लिए काम करते हो? अपने लिए. ठीक है? There is a difference between business and job. बिजनेस में सबसे पहली बात है कि वी वर्क फॉर आवरसेल्व्स. जिसका बिजनेस होता है वो अपने लिए काम करता है. ठीक है? इन जॉब वी वर्क फॉर अदर्स. अच्छा, एक बिजनेस को रन करने का इंसेंटिव क्या होता होगा? इंसेंटिव का मतलब समझते हो आप दोनों बच्चे? इंसेंटिव पता नहीं मैम. नहीं पता. रंजनी, डू यू नो एनीथिंग अबाउट इंसेंटिव बेटा? नहीं मैम. नहीं पता. क्यों भाई? क्यों नहीं पता? एक बिजनेस कोई क्यों चलाता होगा? क्यों? पैसे कमाने के लिए. तो पैसे को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं पैसे को? बिजनेस में पैसे को क्या बोलते हैं? इनकम. इनकम को पैसे को, इनकम को बिजनेस में क्या बोलते हैं? कैसे, किस फॉर्म में इनकम आती है? Yes, of course, we are living for income, right? In the form of money. Oh yeah, money and income are highly correlated. They are both synonyms. So money किस फॉर्म में आता है रंजनी? एक बिजनेस को रन करने के लिए क्या इंसेंटिव है? Why people work? Why people own a business? To earn money. Yes, absolutely, you guys are very correct. But what is the form of money? In which form money comes under business or a job? Salary. Salary is under job. Okay. रंजनी, अब तो दिमाग खोलो जल्दी. लगता है वापस से शिकायत करनी पड़ेगी. मैम आपकी आवाज कम आ रही है मुझको. किसी को मेरी आवाज कम आ रही है? दोनों में से कोई एक तो बता दो. I'm shouting like hell. मेरे को तो आवाज आ रही है. पहले ठीक आई थी. Check your internet connection बेटा. Okay. बिजनेस में किस फॉर्म से आती है? सैलरी तो चलो हर्षिता ने बता दिया. अब मुझे बता दो भाई, बिजनेस किस फॉर्म में पैसे लेके आता है? The only motive to run a business is what? कुछ क्लिक हो रहा है दोनों के माइंड में?
एमसीक्यू थोड़ी है, केबीसी थोड़ी चल रहा है कि एक आंसर पे 10,000, दूसरे आंसर पे 20,000। जल्दी रंजनी, do you guys ever heard about this word profit? हाँ, प्रॉफिट। हाँ, दोनों का आ गया, दोनों की बत्तियां खुल गई दिमाग की। Profit is something which a businessman works for. The only incentive to run a business is profit. अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई एक बंदा बिजनेस क्यों करता है, आंख बंद करके बोल देना भाई उसे प्रॉफिट कमाना है। Now I ask you guys, what is the difference between the term profit and salary? प्रॉफिट मतलब जब कोई बिजनेस कर रहा होता है तो उसकी फिक्स्ड इनकम नहीं होती है, मतलब सैलरी में ये होता है कि उसकी हमेशा फिक्स्ड इनकम रहती है, जो एम्प्लॉयमेंट जो काम कर रहा होता है, पर जो बिजनेस चला रहा होता है उसकी कभी फिक्स इनकम नहीं होती है, वो उसको प्रॉफिट मिलता है मतलब। वाह वाह, चलो रहर्षिता, do you have any better explanation or you agree with Ranjini? प्रॉफिट, सैलरी, I guess I agree with her. You agree with that. See, salary is obviously, yes, what Ranjini said, I absolutely agree with her. It's a fixed amount of income, fixed amount of money you work for which you work for. But what is profit? What is profit? Is it fixed or it is variable? It is variable. It is variable. Ranjini, variable का मतलब पता है आपको बेटा? रंजनी, लगता है सुनाई नहीं दे रहा है इसे। उसका वीडियो स्टक है मैम। नहीं, वीडियो तो स्टक नहीं है। रंजनी, मैम थोड़ा तेज बोल सकते हो मैम? मैम मैंने अपना लैपटॉप पापा के फोन से कनेक्ट कर रखा है, तो फिर प्रॉब्लम होगी आज, बस आज के लिए सॉरी मैम। कोई नहीं, तुम सुन तो पा रही हो, कुछ तो सुन पा रहे हो? बहुत हल्का मैम, बहुत हल्का। मैं एक्चुअली अपनी लीड अपने एयरफोन स्टक नहीं कर सकती, क्योंकि फिर मुझे पूरी सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, पूरी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। क्या बस आज प्रॉब्लम हो रहा है मैम, सॉरी मैम। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बस मेरे को ये बताओ, आपको सुनाई दे रहा है? थोड़ा बहुत भी सुनाई दे रहा है? मैम बहुत हल्का सुनाई दे रहा है, बहुत हल्का। आपको हर्षिता पूरा सुनाई दे रहा है? हाँ, मेरे को तो अच्छी तरह सुनाई दे रहा है। रंजनी, एक काम करो, दोबारा रिजॉइन करो काट के, अपने इंटरनेट कनेक्शन को चेक करो और मुझे दोबारा रिजॉइन करो क्लास। ओके मैम। हाँ ठीक है। वेरिएबल एंड फिक्स्ड का मतलब हर्षिता आपको बहुत अच्छे से पता है। गुड, वेरी नाइस। ठीक है, वेरिएबल which can be changed and fixed which cannot be changed. Okay. So why a businessman runs for a profit? Because बिजनेसमैन का मोटिव ये होता है। Absolutely, बिजनेसमैन का मोटिव ये होता है। सबसे बड़ी बात है, it's not fixed, it's variable. But when we talk about variations, we always talk about risk as well. The higher the risk, higher will be the profit. जितना हम खतरों के खिलाड़ी बनेंगे, उतनी ज्यादा हमें किक मिलेगी। Are you fond of movies? Yes, do you watch Hindi movies, Bollywood, sort of any kind of movie? मैं हूँ साउथ इंडिया में रहती हूँ मैम, पर नहीं देखती हूँ सब। So what is the motive to live in South India? साउथ इंडिया मेरे दादा के टाइम से यहीं पे है, बिजनेस यहीं पे करते हैं। मेरे पापा सब यहीं पे मतलब पैदा हुए, यहीं पे थे। अच्छा, तो you were businessman style. Exactly. Oh my God, businessman. A civil engineer and now he is working on apartments also. Acha, he has his own profession as well. हाँ. Anyways, see रंजनी, अब आ रही है आवाज? कुछ तो आ रही होगी। हम वही है, हल्की है। आज आपका इंटरनेट कनेक्शन कम है इसलिए हल्की आ रही है। खैर सुनो, वेरिएबल वो होता है जो चेंज होता है, ठीक है, which can be changed, ठीक है, फिक्स जो चेंज नहीं होता है। एनीवेज,
कभी किसी ने मूवी देखी किक, सलमान खान वाली? हाँ देखिए। देखी है। क्या उससे समझ में आता है? वो कोई भी नया टास्क करता है, वो कहते हैं किक मिल रही है, लास्ट में वो कहते हैं भाई अभी तक वो वाली किक नहीं मिली, वो एक्साइटमेंट, वो इंसेंटिव नहीं मिला जिससे मैं अपनी लाइफ को कह सकूं यस आई एम टोटली सेटिस्फाइड। लास्ट में जाके जब सारे बच्चों के लिए पैसा जोड़ लेता है तो कहता है हाँ मुझे किक मिल गई। सो दैट किक इज द मोटिव फॉर सलमान खान टू वर्क, राइट? नाउ हियर फॉर अ बिजनेसमैन और अ बिजनेसवुमन, the kick behind to run a business is profit, which is not fixed. Not fixed. Why I'm saying not fixed? Because जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं ना, तो हमेशा याद रखना कि जितना हम प्रॉफिट के लिए भागते हैं उतना पीछे पीछे कौन आता है? रिस्क आता है। विक्रम बेताल? नहीं मैम। विक्रम बेताल की कहानी नहीं सुनी? There was a राजा called विक्रम, उसकी कोई भूत से दोस्ती हो गई थी and then he was always hung up on his shoulders. विक्रम बेताल, कभी गूगल करना विक्रम बेताल। रंजिनी, have you ever heard विक्रम बेताल? शायद से, तुम दोनों ही शायद से मुझे सुना हुआ लग रहा है मैम, पूरी तरीके विक्रम बेताल भाई, एक विक्रम राजा नाम, विक्रम थे राजा, वो कहीं गांव में पता नहीं कहीं गए थे, उनको एक भूत मिल गया, वो भूत हमेशा उनके शोल्डर पे रहता था, तो उनको कहते हैं कि ये बेस्ट फ्रेंड नहीं, हमेशा साथ रहते हैं विक्रम बेताल की तरह, ठीक है? My question was, have you ever watched शोले? शोले देखी है किसी ने? जय वीरू, जय वीरू हमेशा साथ रहते हैं ना? They were complementary to each other, complementary in the sense which can be used together. ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है, हर्षिता फॉर यू, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ओके? एनीवेज, अभी तुम समझ नहीं पाओगे क्योंकि एज फार एज 2 महीने तुम स्कूल नहीं गए तो इकोनॉमिक्स भी नहीं पढ़ी होगी। हाँ मैम। हाँ, गुड। जय वीरू एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ रहा था, उन्होंने लास्ट मोमेंट तक अनलेस वो मर नहीं गया था, जी है ना? मैम। हर्षिता, यू लिसन टू मी? हाँ मैम, आई एम लिसनिंग। या उसमें क्या था कि जहां जहां जय जाता था वहां वहां वीरू जाता था। बिजनेस में भी यही कहानी है, जहां जहां तुम्हें प्रॉफिट मिलने की प्रिडिक्शंस है, जहां जहां तुम्हें प्रॉफिट आएगा वहां वहां तुम्हारा चलेगा रिस्क। याद रखना, दे आर हाईली कोरिलेटेड इन द सेंस दे हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशनशिप कैसे कह सकती हूँ मैम? हायर द रिस्क, हायर द प्रॉफिट। higher the profit. Why I'm saying this? Why I'm saying this? What is the motive behind? What is the logic behind? Higher the risk, higher the profit. क्यों? मान लो मैं बताती हूँ, कोरोना के टाइम पे, ठीक है, there were many business together. IT business, IT sector पता है? इंटरनेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट वाला सेक्टर, इंटरनेट सेक्टर। रंजिनी कुछ डॉट कर पा रहे हो? हम हल्की हल्की आवाज आ रही है बट मुझे समझ आ रहा है। गुड, वेरी नाइस, यही उम्मीद है मुझे आपसे, ठीक है? इंटरनेट सेक्टर, चलो इंटरनेट सेक्टर भी मत लो, छोड़ो। कोरोना के टाइम पे टीचिंग सेक्टर लेते, टीचिंग सेक्टर में बहुत सारे ऐसे फिजिकल टीचर्स थे जिन्होंने इतना ज्यादा लॉस फेस किया। फिजिकल टीचर्स थे, स्कूल था जिन्होंने हाई लॉस फेस किया, लेकिन अनअकैडमी सुना किसी ने? हाँ मैम। बायजूस? यस मैम, टॉपर। सॉरी नहीं, मैं बस और एग्जांपल्स दे रही थी। टॉपर्स अकेडमी, टॉपर, ये सारी, यूडेमी भी है, ये जो सारी साइट्स है ना, यू कांट बिलीव दे स्टार्टेड ऑनलाइन टीचिंग। और ऑनलाइन टीचिंग में इन्होंने रिस्क लिया। पहले ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही था, पहले भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही था, लेकिन तब इनको इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा था। लेकिन इन्होंने इन्वेंशंस करने शुरू करे बिकॉज ऑफ कोरोना। दे स्टार्टेड इन्वेंशंस इन ऑनलाइन टीचिंग and you cannot believe they became the highest sector, highest profit earning sector in corona.
ऐसे कोई कोरोना के टाइम पे कोई इन्वेंशन बता दो मुझे, मुझे याद नहीं आ रहा। दोनों में से कोई भी बता दो यार, बड़े सारे इन्वेंशन हुए थे। जो भी ऑनलाइन सब जो सब कुछ थे वो बहुत अच्छे उसमें पहुंचे। मतलब इंटरनेट पहले सेक्टर, टीचिंग टीम्स सेक्टर। और ये सब चीजें बस ऑफिस पापा के उसमें काम आते थे, बात पर ये फिर हर चीज में यूज होता है, जूम। हाँ एग्जैक्टली, जस्ट अ सेकंड, मैं अभी कॉल करती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? हाँ, तो और किसी के पास कोई इन्वेंशन है? मेरे को अभी याद नहीं आ रही। आई टेल यू एन नंबर ऑफ इन्वेंशंस वाज देयर जो हाईली रिस्की थे और हाई प्रॉफिट अर्न किया उन्होंने, हाई प्रॉफिट। ठीक है, ये तो थी चलो प्रॉफिट की कहानी, बिजनेस और प्रॉफिट और रिस्क की कहानी। अब ओवरऑल बिजनेस इज रिलेटेड टू व्हाट? ओवरऑल बिजनेस किससे रिलेटेड है? बिजनेस इट डिपेंड्स ना कि किस चीज का बिजनेस है। हाँ यस, इट डिपेंड्स किस चीज का बिजनेस है, पर बिजनेस किसके रिवॉल्व अराउंड होता है? इज इट अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और इट्स अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट? फर्स्ट टेल। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आई थिंक। I think you guess it's a practical subject. Otherwise, it's a theoretical. Why you say it's a practical subject? क्योंकि वो मे बी बिजनेस में एक्चुअली घुसने के बाद और आइडिया पड़ता है कि व्हाट इज इट, मे बी। पर अभी तो हम लोग पढ़ेंगे तो मे बी हाँ थियोरेटिकल सब्जेक्ट। You want to say it's a theoretical subject, but it's very sad to know business is highly practical subject. इससे ज्यादा practical subject इस दुनिया में कोई नहीं है, इकोनॉमिक्स को छोड़ के। Is the subject you see around yourself? कोई भी तुम छोटे से ग्रोसरी शॉप पे गए, ग्रोसरी शॉप, हाँ गए हुए मैम। टीचिंग सेक्टर ही देख लो, मेरे पास आ रहे हो, पैसे दे रहे हो, मैं अर्न कर रही हूँ तुमसे, ऑब्वियसली आई विल। ओके, मॉल गए हो यस मैम। और वाटर पार्क गए हो, यस मैम। फूड स्टॉल्स गए हो, हाँ मैम। क्या दिखता है ग्रोसरी शॉप में? बहुत सारे आइटम्स दिखते हैं, यहाँ पे तुम शॉपिंग करके आते हो। टीचिंग सेक्टर में तुम किसी के अंडर एनरोल होते हो, वो तुम्हें पढ़ाता है। मॉल के अंदर जाते हो, यू सी एन नंबर ऑफ शॉप्स ओवर देयर, you buy things over there. Water park, you pay the fees over there to enjoy rides. यस मैम। Food सब stall में जाते हो, food stall में जाते हो, you order food and food comes to your table. यस मैम। Ultimately you are paying money to them. In the form they are getting revenue, मतलब पैसा आ रहा है उन्हें, उनके पास तुम्हारे फॉर्म ऑफ मनी का पैसा आ रहा है। जितने ज्यादा लोग यहाँ पे जाएंगे, जितने ज्यादा लोग यहाँ पे जाएंगे, उतना ज्यादा प्रॉफिट आएगा। मतलब अल्टीमेटली यू सी द बिजनेस अराउंड योरसेल्फ। लेकिन अब वो कैसे कैसे फॉर्मुलेट होगा, कैसे कैसे बनता है, क्या क्या उसकी प्रोसीजर्स होते हैं, कैसे कैसे हम उसको पार्टनर्स को लेके आते हैं, किस टाइप की कंपनी खोली, ये हम धीरे धीरे इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आई मीन इट्स अ वेरी गुड, आई थिंक आई गिव अ वेरी ब्रॉड एक्सप्लेनेशन ऑफ बिजनेस। मेरे को पहले लगा था पता नहीं ऑनलाइन में समझ में आएगा नहीं पहले जैसे होगा, पर जो भी मतलब थोड़ा भी समझी मैं, बहुत क्लियरली एक्सप्लेन था। थैंक यू सो मच। I'm so grateful that you understood. I'm so grateful. Harshita, listen to me, Harshita. See, the demo is expected. आज आपका डेमो है ना? आज आप कल क्लास में ज्वाइन नहीं कर पाए थे ना? So I was asked to take a demo yesterday, but you were not able to join it. हर्षिता, हमारी क्लास होगी 6 PM. Okay मैम। ठीक है, प्लीज ज्वाइन ऑन द टाइम। ओके, आई एम रियली सॉरी मैम, एक्चुअली मेरे फ्रैक्चर है, मम्मी को सब काम करना पड़ता है करके आज सेट करने थोड़ा लेट हो गया था। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आई अंडरस्टैंड एवरी टाइम। आप जैसे ही एनरोल होगे, आप SSSI की ऐप पे आपको ऐड कर दिया जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे वहां पे थ्रू मैसेजेस कर सकते हो। इफ यू वांट टू डायरेक्टली टॉक टू मी, आई विल प्रोवाइड यू गूगल लिंक मीट। गूगल जानते हैं ना, गूगल मीट का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। जिसको भी कोई भी कॉन्वर्सेशन करनी होगी मुझे बोल देना, मैम मुझे आपसे बात करनी है, तो हम गूगल मीट पे बात करेंगे। ठीक है, और यू कैन कॉल द एडमिन वैष्णवी, आई गेस वैष्णवी इज योर एडमिन। ओके,
तो आप एडमिन को या SSSI के एडमिन को कॉल कर सकते हो मुझसे बात करने के लिए, ठीक है। दूसरी बात, आई विल बी टेकिंग रंजनीज PDF। रंजनी की PDF से पढ़ेंगे हम, ठीक है, क्योंकि उन्हीं के पास है सारा मटेरियल, मेरे पास कोई ऑनलाइन मटेरियल नहीं है। आई हैव बुक्स विद मी बट आई कैन नॉट टाइप ऑल द बुक मटेरियल टू यू गाइस, सो PDF विल बी द बेस्ट एग्जांपल। का नाम खाली आप बोल दोगे तो अगर मिलता है NCERT गूगल पे तो मैं डाउनलोड हाँ, कर दूंगी। सुभाष दे मिलता है, सुभाष दे। ओके मैम, 11th की बिजनेस स्टडीज डालनी तो आ जाएगा ना मैम? काफी है वो, सुभाष दे है मेरे ख्याल से, हाँ सुभाष दे ही है। और संदीप गर्ग, ये प्राइवेट ऑथर है। अदरवाइज जो रंजनी के पास है वो भी 11th क्लास का ही मटेरियल है, फाइन ठीक है। तो अब एक बात है, मेरे को अभी मैंने ना 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, जिसमें मैंने बताया, बहुत बेसिक बताया है इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब जो एक रिक्वायर्ड होता है फाउंडेशन करने के लिए। बट जब मैं 3rd चैप्टर शुरू करूंगी कल, आई विल बी कवरिंग 3rd चैप्टर। आई विल बी स्टार्टिंग 3rd चैप्टर व्हिच इज इंडिपेंडेंट टॉपिक। Okay, you will be joining day after tomorrow on MWF। MWF समझ में आता है बेटा? MWF क्या है? Monday, Wednesday and Friday, ठीक है। The other class will be on Monday। आज Friday है ना, तो next class होगी Monday को। We'll be starting with the 3rd chapter, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप, ऐसे टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले जो 2 चैप्टर्स हैं, मैं आपकी डिफरेंट डेज पे क्लास ले लूंगी ताकि मैं वो चैप्टर्स कंप्लीट करवा दूं। Backup, right? I'll be covering your backup. Okay. Moreover, these are all the things I want to cover. बस यही है, क्लास का माइक एंड कैमरा दोनों ऑन होना चाहिए। कोई भी टॉपिक में डाउट हो तो उसी टाइम क्लियर करना है। और चैप्टर्स के PDF है, मैं आपको दिखा दूंगी कि ये चैप्टर्स के PDF है, मैच कर देना, ऑलमोस्ट सेम है, दोनों सिलेबस सेम है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो। आज का टॉपिक बस इतना ही था। I just wanted to tell you my teaching methods. Do you understand my words? Do you understand my teaching aids? आज की क्लास इस बारे में। Do you understand the topic, or are you familiar with me? Are you comfortable with me? I am comfortable with you. आज की क्लास इतनी थी। I do not generally focus on topic because बच्चा डर जाता है कि भाई oh my god it's very difficult, है ना? So पर नो, आई अंडरस्टूड इट वेरी वेल और मेरे को आपका स्टाइल भी पढ़ाने का अच्छा लगा, सो आई एम रेडी टू जॉइन मैम। मेरे को डायरेक्टली एडमिन से बात करनी होगी अबाउट द फीस। या यू जस्ट टॉक टू वैष्णवी, ठीक है, शी विल बी योर, जिसके थ्रू आपने बात करा है ना उसी से कॉल करके बात कर लेना। शी विल बी कॉलिंग यू ऑन योर ओन, ठीक है। इफ शी डज नॉट देन यू आस्क। मंडे से हम अपना 3rd चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है बेटा? फाइन मैम। ओके, अभी आपको लीव करना पड़ेगा। एंड आई रियली लव टू मीट यू, यू आर सच अ स्वीट हार्ट। एंजॉय योर डे एंड टेक केयर ऑफ योर लेग। नाउ यू वांट टू लीव बिकॉज़ मुझे ना रंजनी को थोड़ा सा चैप्टर कंप्लीट करवाना है, ओके ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर। यस रंजनी, सॉरी आज की क्लास वेस्ट हो गई आपकी। कोई बात नहीं है मैम, वो मैम 7 बजे आपकी कोई क्लास होती है? नहीं, मैं तुम्हें 15 मिनट और फालतू पढ़ा दूंगी, टेंशन मत लो। नहीं, मैं चाहती हूँ मैं अपना 7 बजे क्लास स्टार्ट कर दूँ, 7 से 8। मतलब 6 बजे स्टार्ट होती है ना क्लास, मैं चाहती हूँ मैं 7 से 8 कर लूँ। बेटा ऐसा मत करो प्लीज। क्यों मैम? बेटा मेरे को ना एक्चुअली 7 से 8 लेट हो जाएगा। मैम आपको कौन सा टाइम सही रहेगा? बेटा मैंने 6 बजे बोला, तो आपको कहीं जाना है 6 बजे? अब मुझे अकेले पढ़ना पसंद है आपके साथ, मुझे ग्रुप बिल्कुल नहीं पसंद है। मैंने पापा से पहले ही बोला था कोई ऐसी ऐप चूज करना जिसमें अकेले पढ़ाते हो। बेटा एक बारी ग्रुप स्टडी करके देखो, ट्रस्ट मी यू विल बी कंफर्टेबल। बेटा एक बात सोचो, आप मेरे को खुद प्रैक्टिकल एक बात, मैं आपको 6 to 7 पढ़ाऊंगी, ठीक है, उस लड़की को मैं 7 से 8 पढ़ाऊंगी। आप खुद सोचना, ठीक है। अगर आपको एक ही टॉपिक दोबारा रिवाइज करवाना पड़े, दोबारा रिवाइज करवाना पड़े, तो मैं एज अ पर्सन मैं कितनी डेड हो जाऊंगी वो सेम चीज पढ़ा के। मैंने इस क्लास में जितनी बार हर्षिता का नाम नहीं लिया होगा उतनी बार रंजनी का नाम लिखा भी। तो माय मेन फोकस वाज ऑन यू। जी, यू अंडरस्टैंड?
मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं आपको ऐसे नहीं पढ़ाना चाहती. आई जस्ट वांट. क्या हुआ? कुछ करवाना है? क्या करवाना है? थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट की क्लास है, ठीक है, मैं घर ही आ जाऊंगी. घर नहीं आओ, आप आ जाओ. हाँ ठीक है, ये वरना बैठ जाओ थोड़ी देर. मानी नहीं, लाओ मेरे को दो, मेरे को दो, मेरे को दो. क्या? हाँ ठीक, मैं कर दूँ. हाँ हाँ ठीक है. हाँ रंजनी सुनो. हाँ हाँ ठीक है. देखो, मेरा फोकस रंजनी पे ज्यादा है बिकॉज मेरी फेवरेट स्टूडेंट रंजनी है. You are my darling. If she is sweetheart, you are my darling. जी मैम. और कितने साइंस दूं? I want to teach you. आज मेरी पता है वैष्णवी से बात हो रही थी, एडमिन से. मैंने सबसे पहले रंजनी का नाम लिया कि मुझे रंजनी को पढ़ाना पसंद है. पहले मैं बोल रही थी कि मैं छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगी. आई डोंट टीच छोटे बच्चे. एंड यू आर so little to me. Little, very little. लेकिन तुम्हें पढ़ा के मुझे इतनी सेटिस्फैक्शन मिलती है, इतनी सेटिस्फैक्शन. देखो मैं लिख भी रही हूँ साथ साथ ताकि तुम्हें सुनाई प्रॉपर दे. सुनाई नहीं दे रहा, लिखा हुआ प्रॉपर दे. जी मैम. तुम्हें इतनी तुमको पढ़ा के मुझे इतनी सेटिस्फैक्शन होती है. आई कैन नॉट गेट इट फ्रॉम एनी चाइल्ड. आई एम टीचिंग ऑलमोस्ट 20 स्टूडेंट्स अ डे एंड आई एम नॉट गेटिंग एनी सेटिस्फैक्शन. सबके साथ देखो, सबको एंटरटेन करना मेरी जॉब है, राइट? इफ आई विल नॉट एंटरटेन द person in sitting in front of me, then how will I earn? Right? I have to give the services. I have to get it enrolled. है ना? जी. एक बारी पढ़ के देखो, अगर कोई डाउट आएगा तो मैं तुम्हें 10 बार बताने के लिए रेडी हूँ. 10 बार. जी मैम. लेकिन अपना इंटरनेट कनेक्शन साफ रखना भैया. बहुत चिल्लाना पड़ता है, मेरा गला सूख जाता है. सॉरी मैम. स्टारवेशन हो जाता है मुझे. सॉरी मैम, ये पहली बार हो रहा है ऐसा. बस शिफ्टिंग की वजह से. मंडे को क्लास ज्वाइन करेंगे, आपको सब कुछ लाइट सब कुछ अच्छे से दिखेगा. आपको जैसे उस घर में मेरा फेस अच्छे से दिखता नहीं था, इस घर में अच्छे से दिखेगा आपको. क्यों? इस घर में ज्यादा लाइटिंग करवा दी? जी, इसमें बड़े बड़े लाइट है. आपके पापा से बात कर सकती हूँ मैं? मेरे पापा नीचे अंकल से बात कर रहे शिफ्टिंग और सब चीजों का. अभी तो मैं देख रही थी, यहीं थे. वो सामान रखवा रहे थे. अच्छा, अगर उनको टाइम हो तो पूछना कि आप मैम से बात कर सकते हो क्या? कॉल पे नहीं, ऑन द गूगल मीट आई कैन सी हिज फेस ना. ओके मैम. है ना? देखो बेटा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको 10 बार पढ़ाने में. जस्ट मेरे साथ कोप अप कर लो, थोड़ा सा मेरे साथ कोप अप कर लो. मैं आपके डाउट्स अगर आपको होंगे ना, मैं क्लास में रंजित और हर्षिता को पहले भेज दूंगी, तो आपको रखूंगी. जो भी डाउट होगा मुझे साथ साथ बता देना. जी मैम. कॉन्सेप्ट सबके साथ बताने देना, क्योंकि कॉन्सेप्ट में होगा बेटा मेरे को एक ही चीज बार बार रिपीट करनी पड़ेगी. जी मैम. इतना थोड़ा सा मेरे साथ कोप अप कर लेना, बाकी सब बढ़िया है हमारे पास. ठीक है? ओके मैम. चलो, हम यहाँ थे ना, जी मैम. ई कॉमर्स कर रहे थे हम. ई कॉमर्स, जी. आई जस्ट रिमेम्बर ना. एक मिनट में कलर चेंज. ई कॉमर्स, यू अंडरस्टैंड, हमने लास्ट क्लास में ई कॉमर्स पढ़ा था. इलेक्ट्रॉनिकली कॉमर्स, इंटरनेट वाला कॉमर्स. ठीक है? अ सबसेट ऑफ ई बिजनेस. ई बिजनेस मतलब इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस. इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस व्हिच इज रिलेटेड टू इंटरनेट मोर. जी. इंटरनेट से जो ज्यादा रिलेटेड होता है उसे बोलते हैं हम ई बिजनेस. ठीक है? जैसे ई बैंकिंग, बैंकिंग फैसिलिटीज इलेक्ट्रॉनिक हो गई. जी. इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, इज इट गुड? ठीक है? स्विगी, जी. ग्रोफर. जी. एक तरीके से जो भी इंटरनेट वाली चीज है. एग्जैक्टली, जो भी इंटरनेट वाली चीजें है उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस. ओके. ठीक है? हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस आजकल ज्यादा इमर्जिंग एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल. जी. ट्रेडिशनल. ओके? In practice, this term is a newer term. E-business are often used for interchangeably for online retail selling. The term e-tailing or sometimes used. Electronic commerce is the conduct of financial transactions by electronic means. With the huge success of commerce on internet, e-commerce usually refers to the shopping at online stores on the World Wide Web, WWW, as also known as e-commerce or website. E-commerce can be broken into 4 main categories: B2B, B2C, C2B, C2C. ठीक है? अब हमें पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस लोगों से कनेक्ट कैसे होता है. इतनी बात समझ में आई? पहले बताओ. ये सब फालतू लिखा हुआ है. बट
वर्ल्ड वाइड वेब और ये सब चीजें जो आई है एकदम से ये चीज समझ नहीं आ पाई। www .com ये सुना है मैंने ऐसे, बट समझ नहीं आई कैसे। वही कह रहा है, वो इतना से कहना चाहता है, गूगल कर लो, जी गूगल करो कोई भी ऑनलाइन स्टोर के बारे में, तो तुम www भी तो डालते हो, पहले कोई भी कुछ चीज सर्च करोगे www कुछ आता है ना, जी .https करके कुछ एक डेटा कोडिंग आती है, जी कभी भी गूगल एक मेन गूगल आता है, तो मैं दिखाती हूँ। ये देखो रंजनी, www.worldenvironment.global जी दिख रहा है, जी www.un.rg, इट्स जी वेबसाइट्स नहीं, कोई भी, जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मान लो मैंने ये खोली, जी ये मैम किसकी वेबसाइट है, ओनली वन अर्थ की वेबसाइट है, ठीक है, जी तो उसकी वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट जब हम बनाते हैं बेटा, तो उसको बोलते हैं WWE, क्या बोलते हैं उसे, WWE, WWE वर्ल्ड वाइड वेब, ये कोडिंग होती है जिससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज को हम सर्च कर सकते हैं, सर्च कर सकते इट्स हैं। अ सर्च इंजन, क्या बोलते हैं इसे, सर्च सर्च इंजन। सर्च इंजन, जी मैम ठीक है। जी अब हमें टाइप्स ऑफ कैटेगरीज पढ़नी है कि ई कॉमर्स में कौन सी कैटेगरीज होती है, ठीक है, ई कॉमर्स में कौन सी कैटेगरीज होती है, जिसमें हमें सबसे पहले कैटेगरी कौन सी पढ़नी है, हमें सबसे पहले कैटेगरी पढ़नी है B2B, इसे कहीं नोटबुक में लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। मैम मेरे पास से PDF है ना, जब नोटबुक सब कुछ खुल जाएंगे तब मैं लिख लूंगी, बट आप अभी समझा दो। देखो सुनो, B2B, ठीक है, बिजनेस टू यहाँ पे जो बिजनेस। टू है ना, वो टू है, नॉट टू, ये वाला टू नहीं है, ये वाला टू है, जी शॉर्ट फॉर्म, एब्रीवेशन, ठीक है, समझो, यहाँ पे जब भी तुम बड़ा बड़ा बी देख रहे हो, ये बी का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस, जी जब हम डील करते हैं बिजनेस से बिजनेस से, ठीक जी है, मैम लेट अस सपोज ये रंजनी लिमिटेड कंपनी है, रंजनी लिमिटेड, ओके ठीक है, मैम इट्स अ कंपनी, इट्स अ बिजनेस, ये एक बिजनेस है, ये किसका बिजनेस है, ये बिजनेस है, किसका बिजनेस लूं, ये टीचिंग बिजनेस, टीचिंग एजुकेशनल बिजनेस है, ठीक है, एकेडमिक बिजनेस है, जी और एक है वानी लिमिटेड, वानी लिमिटेड, जी मैम वानी लिमिटेड भी एक बिजनेस है, ये है ब्लैक बोर्ड का बिजनेस, ब्लैक बोर्ड बनाती है, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ठीक है, जी मैम ठीक है, मान लो कि तुम्हारा इंस्टीट्यूट है, तुम्हारी एक बहुत बड़ी कंपनी है जिस जो एजुकेशनल बिजनेस है, जिसका एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, सेंटर है, इंस्टीट्यूट समझ में आता है, क्या? इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट, सेंटर, ट्यूशन सेंटर, कोचिंग सेंटर, सुना है, समझ में आता हाँ है, हाँ हाँ रंजनी लिमिटेड एक कोचिंग सेंटर है, रंजनी लिमिटेड ने वानी लिमिटेड से कांटेक्ट किया, उसको व्हाइट बोर्ड चाहिए बहुत सारे, वानी लिमिटेड ने क्या किया, व्हाइट बोर्ड रंजनी लिमिटेड को दे दिए, जी तो अल्टीमेटली ये ट्रेड हो रहा है ना, जी तुमने मुझसे सामान मांगा, मैंने सिर्फ तुम्हें दिया, तो ये ट्रेड क्या हो गया, बिजनेस टू बिजनेस रंजनी लिमिटेड टू वानी लिमिटेड, जब जी कोई कंपनी आपस में बिजनेस, दो कंपनीज आपस में बिजनेस करती है, प्राइसिंग कोई भी डिसीजन के बेस पे, तो उसे क्या बोलते हैं, बिजनेस टू बिजनेस। समझ में आई, जी जब मैम दो बिजनेस आपस में बिजनेस करते हैं, मतलब ट्रेडिंग करते हैं, सामान बेचते हैं, पैसे कमाते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस टू बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस, ठीक है, जी मैम दूसरा आता है टू कॉमर्स। B2C, B2C, बिजनेस
टू कॉमर्स, कमर्स नहीं, कंज्यूमर्स, कंज्यूमर, सॉरी सॉरी, कस्टमर्स, बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है। कंज्यूमर और कस्टमर एक ही बात है, ठीक है, ठीक है। मैं थी एक आम इंसान, ठीक है, और ये है ग्रोसरी शॉप। अब मैं क्या करती हूँ, मैं जाती हूँ ग्रोसरी शॉप, वहां से सामान लेके आ जाती हूँ। क्या ये ग्रोसरी शॉप वानी लिमिटेड को सामान दे रहा है? नहीं दे रहा ना। नहीं रंजनी लिमिटेड को सामान दे रहा है? नहीं, नहीं। ये सिर्फ किसको दे रहा है? कस्टमर, कस्टमर को। ठीक है। जी, Business is selling to the general public, typically through catalogs utilizing shopping cart software. By dollar volume, B2B takes the price, and consumer do the transaction. वो ये इसका कहना चाहता है, मतलब ये पूरे जो भी कस्टमर होता है वो सभी को देता है फोन में से। यस यस, जनरल पब्लिक में हर कोई, तुम भी, मैं भी, मम्मी भी, पापा भी, हर कोई। मतलब कोई भी ऑनलाइन ले सकता है। ऑनलाइन, कोई जरूरी थोड़ी ऑफलाइन लेना, ठीक है। जी ये क्या है, समझ में आई? जी B2C, मैम, जब कोई बिजनेस एंटिटी कस्टमर से डील करती है तो उसे क्या बोलते हैं? कंज्यूमर, कस्टमर, B2C, क्या बोलते हैं? B2C। समझ में आया? जी मैम। गुड। दूसरा आता है C2B। अब क्या होगा ये C2B? कंज्यूमर टू बिजनेस, कस्टमर टू बिजनेस, मतलब कस्टमर बिजनेस वालों को पैसे देता है, उनका तो यही होगा ना कस्टमर का। पैसे नहीं देता, हम कोई भी सामान खरीदते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं तो वो हमको सामान देता है और हम उसको पैसा देते हैं, ठीक है। जनरली वो हम उसे पैसा नहीं देते जबरदस्ती का, हमसे सामान खरीदते तब पैसा देते हैं उसे, जी ठीक है। जी दूसरी बात है कस्टमर टू बिजनेस। कस्टमर टू बिजनेस का मतलब होता है, कभी आपने बिडिंग सुना है? बिडिंग, नहीं, शेयर होल्डिंग, शेयर कंपनी, I don't know what bidding is called in Hindi. अरे आपने वो पिक्चर देखी है वेलकम? नहीं, कैसे समझाऊं? क्या बोलते हैं बिडिंग को? एक मिनट रुको, गूगल करने दो क्या बोलते हैं bidding को। बोली लगाना। मान लो कि आप एक कस्टमर हो, आप रंजनी हो, ठीक है, आपको बहुत अच्छी पेंटिंग बनानी आती है, जी, ठीक है। आप एक आर्ट गैलरी में गए, आपने बोला कि मैं अपनी आर्ट गैलरी की पिक्चर बेचना चाहती हूँ, जी, ठीक है। मैं अपनी एक पिक्चर आर्ट गैलरी में अपनी एक पिक्चर बेचना चाहती हूँ, ये मैंने एक पिक्चर बनाई है, मैं इसे बेचना चाहती हूँ। जो कस्टमर, जो बिजनेस वाला, जो जिस बंदे को ये मेरी पिक्चर पसंद आएगी, वो अपना एक दाम बोलेंगे, मान लो 10,000, जी, कोई बोलेगा 20,000, कोई बोलेगा 40,000, कोई बोलेगा 50,000। जी, जो सबसे ज्यादा पैसों में बेचेगा उसे क्या मिल जाएगी? ये पिक्चर। इसे बोलते हैं बोली लगाना। धीरे धीरे बोली लग रही है ना? जी मैम। तुमने वो पिक्चर देखी है? किसी मूवी होती है ना, अंग्रेजी तो इसमें मीडियम, दिखाते हैं, हाँ देखी है। अंग्रेजी मीडियम में वो जो लास्ट लड़की ट्रूफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाती है, पता नहीं ट्रिनिटी या ट्रूफोर्ड जो भी जाती है वो, पापा उसके पैसे फीस करने के लिए फिर वो करते हैं। हाँ, तो उसके 1 करोड़ देता है वो, 3 करोड़ या 1 करोड़, पता नहीं कितने डॉलर में वो जाके लास्ट रुकता है, तो वो सीट उसके पापा को मिल जाती है उस कॉलेज, है ना? जी, उसको बोलते हैं बिडिंग, जी, ठीक है। A consumer posts his project with a set budget online, and within hours, company review the customer's requirement and bid on the project. The consumer reviews the bids and select the company that will complete the project. C2B empowers consumer around the world by providing the meeting ground and platform for business transaction. मान लो कि तुम एक पॉटर हो, मान लो तुम पॉट, समझ में आता है? पॉट्स, फ्लावर पॉट्स वगैरह बनाते हो, जी, 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 ठीक है। मान लो कि तुम्हें ऑनलाइन बेचना है, जी, उस फ्लावर पॉट को जिस कंपनी सबसे महंगा खरीदेगी तुम उसी को तो दोगे। जी, बस यही बात है, कस्टमर टू कंज्यूमर, समझ में आ गया? कंज्यूमर टू बिजनेस। जी। एक आता है, लास्ट आता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर टू कंज्यूमर का मतलब क्या होता है? कस्टमर ही कस्टमर को दे। कस्टमर ही कस्टमर को दे।
मान लो तुम घर में सोप्स बनाते हो, आजकल लोग घर में सीरम्स बनाने लग गए हैं, जी ठीक है, वो खुद एक कस्टमर है, वो खुद कहीं से सामान खरीदता होगा, ठीक है, जी फिर वो घर में बनाता होगा, फिर वो जी बाकी लोगों को बेचता होगा, जी तो वो खुद भी एक कस्टमर है ना, जी और वो बाकी खुद भी लोगों को भी अपना का खरीद रहा है यूज ना। करता है और फिर औरों को भी हाँ देता है। हाँ 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 एग्जैक्टली। जी 1 मिनट रुकना आनंद जी, इतना समझ में आया? जी मैम। रीड करो, पूरा स्टार्टिंग से। कंज्यूमर टू कंज्यूमर। C to C. There are many sites offering free classified acquisition and forum where individual can buy and sell things to online payment system like PayPal, where people can send and receive money online with easy. हाँ Is eBuy's action नहीं आ जाएंगे तो भूल जाऊंगी। service is a great example of where people person to person. ठीक है, क्या हुआ? ऑक्शन AQCTION ऑक्शन ऑक्शन auction. मतलब बोली लगाना, ओके ठीक है, इतना समझ समझ में लो, आया। इसको याद कर लेना, ठीक है, नहीं मैम मुझे समझ में आ गया। आ गया ना? जी गुड, मेरा अच्छा बच्चा आया, बढ़िया वाला बच्चा आया। एक आता है लास्ट G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। जी मैम। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी होता है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय भी होता है, गवर्नमेंट टू बिजनेस भी होता है, बिजनेस टू गवर्नमेंट भी होता है, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है? ओके मैम मतलब मैम मेरे सिलेबस में नहीं है। हाँ, ये मतलब बहुत हायर लेवल की चीज होती है बेटा, हायर लेवल इन द सेंस कि इसको समझने के लिए आपको बेस बनाना पड़ता है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डीलिंग कैसे होती है। ओके गवर्नमेंट के जैकपॉट्स निकलते हैं, गवर्नमेंट के वो निकलते हैं कि टेंडर निकलते हैं, उसको निकल लेने के लिए गवर्नमेंट ही उसे ले लेती है, ठीक है? जी तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके सिलेबस में वो 3 कैटेगरी है, ठीक है? जी मैम। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। पहला एडवांटेज इसमें सबसे आता है वाइडर चॉइस। वाइड्स अ वाइडर चॉइस, जो बंदा तमिल में है, तमिलनाडु में है, वो मुझसे पढ़ रहा है आज। हाँ जी आप चेन्नई में हो, आप पढ़ रहे हो मुझसे। जी कोई बच्चा महाराष्ट्र में है, मुझसे पढ़ पाएगा? हाँ दिल्ली में पढ़ पाएगा? जी मुंबई कहीं पर में भी पढ़ पढ़ लेगा चाहे वो दूसरी कंट्री में हो। एग्जैक्टली, वाइडर चॉइस। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का मतलब ये है कि तुम्हारी चॉइस वाइड हो जाती है, वाइड इन द सेंस कि तुम कहीं भी बैठ के उसको तो एक्सेस कुछ भी कभी भी कोई काम कर सकते हो अपना बिजनेस। एग्जैक्टली, ठीक है? जी इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विसेज, एक है Amazon जी और एक है मीशो, जी सुना है? जी मैम। ये है 5 स्टार कंपनी और जी ये 1 स्टार कंपनी। क्यों? अमेजोन में ज्यादा अच्छा होता है काम टाइम पे। Amazon की जो सर्विसेज है वो बहुत अच्छी है, जी मीशो की इनफैक्ट ऑफ इतनी नहीं है। मीशो नहीं है, ठीक है? जी तो पीपल हमेशा अमेजोन से ही लेना चाहेंगे सामान। एग्जैक्ट, क्विकर रिस्पॉन्स टू कंज्यूमर। एक बार क्या हुआ, मैंने Amazon से सामान मंगाया था, आई हैव ऑर्डर्ड अ परफ्यूम। मैंने एक परफ्यूम मंगाया था और जी उसके बदले मुझे पता है जब मेरी डिलीवरी हुई उस चीज की तो मुझे आ गया फाउंडेशन, मेकअप का सामान आ गया था, ठीक है? तो मेरे को तो ये चाहिए नहीं था, एक तो मेरी शेड का नहीं था, दूसरी बात मुझे चाहिए नहीं था। तो क्या हुआ उसके बदले, मैंने आपने Amazon शिकायत करी अमेजोन को। कस्टमर केयर पे मैंने शिकायत करी Amazon की कि मैम ऐसे ऐसे मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए था और ये प्रोडक्ट आ गया है, तो आप प्लीज इसे रिटर्न करवा दीजिए। विद इन, उसने बोला यस मैम, आपका विद इन आपके 2-3 दिन में हम लेने आ जाएंगे, पिकअप लेने आ जाएंगे। और आप, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है मैम बट मैं फिर भी दबा के रखी जिससे अच्छे से आए। तो उससे क्या होगा कि उन्होंने बोला कि ठीक है मैम आपके 2 दिन में पिकअप हो जाएगा। विद इन नेक्स्ट डे Amazon वाला केम एट माय डोर स्टेप एंड ही पिक्ड माय थिंग और मेरे पैसे
एक दिन के अंदर ही मेरे अकाउंट में वापस आ गए। बताओ, इतनी फास्ट हो गए। जी मैम। I took admission of यूनिवर्सिटी इन मुंबई। ठीक है, मैंने एक कॉलेज में एडमिशन लिया था मुंबई में। वहां पे क्या हुआ, जनरली जब हम किसी को फीस पे करते हैं तो वहां से एडमिशन जब मतलब कैंसिल करवाते हैं तो बहुत टाइम लगाते हैं फी पे करने में। विद इन नेक्स्ट डे, एक मिनट ना रंजनी, जी हेलो, मैम। हाँ जी मैम। मैम मंडे को क्यों होगी? मैम देख लेना, फिर मैं कोई क्लास नहीं लूंगा, मंडे को क्रेडिट नहीं। ठीक है, मैं क्लास ले लूंगा, आपको थोड़ी देर में बात करती हूँ। हाँ, तो क्या है ये, कहाँ थी मैं? तो अगले तो यूनिवर्सिटीज बहुत टाइम लगाती है फी रिफंड करने में। विद इन 2 days मेरी वो सारी पेमेंट वापस आ गई। इतना अच्छा उनका कस्टमर सेटिस्फैक्शन प्लेटफॉर्म, इतना अच्छा। जी मैम। ठीक है, जितना अच्छा कस्टमर सेटिस्फैक्शन प्लेटफॉर्म होगा उतनी जल्दी उसकी डिमांड ज्यादा होगी। कॉस्ट सेविंग एंड प्राइस रिडक्शन। ऑनलाइन पढ़ाने का मेरा ये फायदा है कि मुझे ब्लैक बोर्ड पे ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता, जी। है ना। मुझे मार्कर्स पे ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता, मुझे एडवर्टीजमेंट पे ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। सारे बच्चे अपना आप आ जाते हैं ना। जी। तुम्हें जैसे मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ते हैं, एक टीचर बहुत सारे मार्कर्स यूज करता है, वैसे मैं भी यूज करती हूँ। जी। तुम्हें एक ब्लैक बोर्ड वाली फीलिंग आती है? बताओ, हाँ, नहीं आती तो? आती है। आती है, बस मेरी राइटिंग भी तो खराब है। नहीं मैम, आपकी समझ में आता है और टीचर से अच्छी है काफी। दूसरी, द नेक्स्ट पॉइंट इज मार्केट इन्फॉर्मेशन। मार्केट इन्फॉर्मेशन, आजकल जो कंज्यूमर है ना, वो इतना अवेयर है कि उसे सब पता है। गूगल बाबा ने उसे सब बता रखा है कि इस प्रोडक्ट में क्या होता है, तो कोई भी जी। उसे फूल नहीं कर सकता। इसलिए हम जब भी ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं तो हम इतने ज्यादा अवेयर होते हैं कि हम चीजों में जल्दी फूल नहीं हो पाते। नहीं होते, हमें सब कुछ पता रहता है कि ये सब कुछ पता सही है। है और ये ज्यादा सही नहीं है। एग्जैक्टली। अब मेरे डियरेस्ट के लिए एक है होमवर्क, वो है ये वाला। ठीक है, मैम मैं आपको होमवर्क सेंड कर दूंगी फोटो से, पापा से बोल के, जब मेरी नोटबुक निकल जाएगी। मैंने ये होमवर्क सारा फिनिश होमवर्क है कर आपका? दिया। ठीक है, जी मैम। मैम सारा। और क्लास में टेस्ट हुआ था मेरा, हम्म। ओरल फर्स्ट चैप्टर का था, एक्सरसाइज में सही था वो, मेरा सारा सही था, काफी इजी अरे था, कुछ वाह, भी नहीं था। पार्टी होनी चाहिए फिर तो। पार्टी, पापा को बोलो दे पार्टी देंगे। दे। ठीक है, जी मैम। अभी तो तुम अपना सेटल हो जाओ। आई नो इट्स डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट जी सेटल मैम। डाउन। आई अंडरस्टैंड। कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैम मुझे बाबा आपको पीडीएफ सेंड नहीं करनी होगी, क्योंकि गूगल पे अगर आप एनआईओ सेकेंडरी सब्जेक्ट देखोगे, आप क्लिक करोगे उस पे, उसमें बिजनेस स्टडीज आ जाएगा, आपको सब्जेक्ट देखना होगा, उस पे क्लिक करोगे, उसमें सारे चैप्टर्स आ जाएंगे, 1 से लेके सारे। नहीं यार, तुम मुझे पीडीएफ भेज देना ना प्लीज, बड़ा मुश्किल है। ठीक ओके है, मैम। थोड़ा ओके कोप मैम। अप कर लोगे ना रंजनी? हाँ मैं कर लूंगी मैम। आप तो मेरा अच्छा बच्चा हो ना, आप तो कर लोगे ना? जी मैम। बस मेरे एग्जाम्स के बाद थोड़ा अगर सेटल हो गया तो ठीक है, वरना बेटा मेरे को कम से कम 1 साल चाहिए पढ़ाई करने के लिए टू गेट अ गुड जॉब। तो आई जस्ट मैम। डोंट वांट कि मेरा टाइम वेस्ट हो, है ना। जी मैम। तो थोड़ा मेरे को, आपको नहीं समझ में आएगा तो मेरे से कंप्लेंट करना, मैम आपका समझ नहीं आया। लेकिन मेरा फोकस यही रहेगा कि आप दोनों बच्चों को अच्छे से समझ पाए। ठीक है बेटा, जी मैम। आप मुझसे 10 बार क्लास के बाद डाउट पूछ लेना, मैम मुझे नहीं आया, मैम मुझे नहीं आया, आई डेफिनेटली विल क्लियर योर डाउट। ठीक है, जी मैम। ठीक है, कोई टेंशन नहीं कि मैम मैं इतने बच्चों के साथ कर रही हूँ तो मुझे नहीं आएगा। अगर रंजनी को नहीं आएगा ना तो मैं आगे बढ़ूंगी ही नहीं। पहले रंजनी समझेगी फिर कोई और समझेगा। ठीक ओके है, मैम। ओके मैम। ऐसे बोलना मत किसी को, वरना बोलेंगे टीचर बायस्ड है, ओके मैम। सिर्फ टीचर एक बच्चे से प्यार करता है। ऐसे मत बोलना, मार्केट में वो रेपुटेशन खराब हो जाएगी। जी ठीक है, जी ऐसे मैम। बाकी एडमिन वाली मैम को भी मत बोलना, वरना वो बोलेगी अच्छा मैम आप रंजनी भी पढ़ाओगे। मैम और आप अपनी मैम को प्लीज बोला करो बार बार बीच में कॉल ना करे, डिस्टरबेंस होता है क्लास में।
बताओ, आपके सामने ही कॉल करती रहती है, मैं क्या करूँ बताओ। फोन नहीं उठाती तो फिर भी करती रहती है, बताओ। जी मैम। चुल है मैम, कुछ चुल। ठीक है, चलो हाँ। कोई नहीं, आज सैटरडे संडे एंजॉय करो, मस्त मंडे को मिलते हैं हम, ठीक है। ओके और मैम, अपनी बेस्ट क्लास ऑफ प्लीज लक मेंटेन मैम कर देना। तैयारी के लिए। हाँ आप भी पढ़ो, ठीक है, जी मैम। पढ़ाई छूटनी नहीं चाहिए। जी मैम। ओके बाय, टेक केयर, गुड। बाय बाय। ओके।